Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Um, Happy Shukrana to everybody. Welcome to Dil Diya Galla on Friday. I think May 23rd ho gaya. Yes. This month is going so fast. And I want to say Namaskar, Sat Sri Akal, Assalamu Alaikum, Jai Shri Krishna to all my friends, whoever are watching and whoever will watch afterwards. तो हमारा प्रोग्राम जो है मैं कहना चाहती हूँ कि इस गोज अराउंड द क्वाइट अ फ्यू लॉट ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एंड आई वाज सरप्राइज माई सेल्फ दैट वी रीच 28,000 पीपल. तो उससे ज़्यादा लोगों ने भी देखा है, रीच काफ़ी है. तो मैं चाहती हूँ कि जब भी देखें प्रोग्राम, जब भी देखो, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन, बिकॉज हमारे साथ गुरु नरेंद्र जी हैं, इतना अच्छा समझाते हैं. Why to waste? Why not other people should listen? If they can't attend the same time, forward to the people. They can see, they can listen in the night, they can listen the next day, they can listen in their morning, in their जब भी उनका time होएगा. So everybody can listen at different time frame. But why to not listen when this program is available 24/7 every day of the week? And also when we are not here, we are available on, we do the programs on Wednesday and Fridays. Before we were doing 3 days, Monday, Wednesday and Fridays. उससे पहले हम every day करते थे, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. That was during the COVID time. फिर उसके बाद मैं 2 साल तो किया, फिर मैं अकेली थी, फिर मैंने कहा मेरे लिए बहुत हो गया, मैं भी बात का भी बड़े काम कर रही हूँ. So then we made it 3 days, when Monday, Wednesday and Fridays. तो आपको मालूम है यहाँ पे इतनी बिजी लाइफ है कि संडे के बाद सुबह उठ के मैंने कहा चलो अभी बड़ी वेरी टायरिंग, आई नीड वन मोर डे ऑफ. So we made it Wednesday and Friday, but we have the same programs. कोई हमने प्रोग्राम कट नहीं किए. अगर हमारा कोई स्पेशल होता है, I don't mind doing on Mondays. If somebody is not available, you can let me know that your availability is not Wednesday or Friday, but you can do it Monday. I'm always ready to do something. And Narinder ji kindly always forwards this program to all his friends, and he told me that he has friends in California and even in Thailand जो देखते हैं और काफ़ी अच्छे उन्होंने he's given good reviews. And also Canada. Canada. I also have to thank my partner, or you can say my assistant or my friend, who's in Pakistan, Rawalpindi. She does a lot of help. She does all my flyers and my backhand work and contact karna, sabse deal karna. So a wonderful person. I really have to thank her as well, because without her, I don't know if I can do all these things. So of course, with all the guests coming in, of course the program is nothing without the guests, without good friends. And India में भी बड़े अच्छे friends हो गए हैं, and over here, and Narinder ji देखो कितने सालों से आ रहे हैं, and he's always willing whenever I tell him. When he was available in town, yes. If he's on vacation, then it's different thing. But I thought you were going away this weekend. It's a long weekend. आप नहीं किधर गए? Yeah. This weekend you do not go. So anyway, so the vacations are coming up, and I want you also, this guy, all of you, to be very careful this weekend. It's a long weekend, and people are going to drive like crazy. So wherever you are, be careful. So welcome Narinder ji. मैं आपको give you a lot of credit for coming and sharing your thoughts with us. आज का topic बहुत ज़बरदस्त है. What is spiritual cataract? But before we go into that, I will request Narinder ji to give us or do a world peace prayer, which was very badly needed. Some things have gone better, but some things have not. So we have to keep on praying every week until we feel that it's getting better. So Narinder ji, thank you so much for coming, and welcome. Before we start the word prayer, I would like to compliment you. Your dedication and commitment to do the community service through this program. We have been stressing more than enough par excellence. It requires a lot of time and dedication and resources, and you make yourself available. All the programs are running in time, and 3 days in a week, it's a big commitment. And that shows the compassionate personality you are holding within your being. And having said that, let us start now the word of prayer. Yes. Om Shasmidham Punyam Ya Pathet Priyata Puman
विष्णो पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जिताः गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक एकैनाथं ॐ द्यौ शान्ति अंतरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्ति रापा शान्ति रोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वागम शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 ॐ By the invocation of the divine mantras, we are seeking the blessings of the Almighty to grant peace to this little globe where 8.4 billion people are crowded, and there are a lot of bad things are happening. We are seeking His mercy and blessings. And as I've been stressing more than enough, peace starts with us, in your home, within you. So every individual at their own level try to become peaceful, and then you will project peace. Wherever you will go and touch people, they will become peaceful. So these prayers are very, very sacred prayers, and a lot of divine vibrations are created in the whole atmosphere. So let us pray that peace should stay and mercy should stay with us. Jai Shri Krishna, and back to Vinaji. I agree 100%, Narinder ji. We should pray, and आपने very timely बहुत अच्छी pray करी है, and I'm sure universe always listens to our program, and we know that we are doing our bit in this world. We are doing our best, and we do wish for peace to come. And like you said, it all starts from your own neighborhood or own backyard or whatever you can say, own town, own city, or whatever it is. It starts from there. तो अब मैं चाहती हूँ, आपका टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे 100% समझ नहीं आया खुद ही। मैंने सोचा कि मैं आपसे, of course you're going to explain to us what is spiritual cataract. That is a topic today, and I'm sure if you saw the flyer you would have seen it, but हमारे साथ नरेंद्र जी एक्सप्लेन करेंगे फर्दर कि क्या इसका मतलब क्या है. So then we'll see what. Really, it's a very interesting topic and relating to the present situation. ये जो वर्ड ईश्वर ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ने, क्राइस्ट ने क्रिएट की है, ये एक वर्ड है, एक वर्ड है. सो गॉड इज वन. Yes. द क्रिएटर इज वन, डिफरेंट क्रिएटर नहीं है. ओनली वन क्रिएटर क्रिएटेड दिस क्रिएशन. और जो क्रिएटर है उसका नाम है गॉड.
आप उसके डिफरेंट नाम से जो आप मर्जी कहते रहो, वो आपकी वोल्यूशन है, बट क्रिएटर इज वन, एंड उसको आप डिफरेंट नेम से जो भी जिसका पैसा बुलाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गॉड इज वन, एंड मैसेंजर्स आर मैनी। दिस इज द moot point. Messengers and prophets are many. God is one. So these man-made faiths, that is the problem. That is the problem, because God is one, His creation is one. He, the God, He has a lot of messengers and prophets, Yes. but behind that there is only one God. So if I am a true peaceful person, I will worship, adore the God, not the messengers. मैसेंजर तो एक मैसेज लेके आए हैं, और वो मैसेज हम भूल गए हैं. We started worshiping the messengers. What they are saying, we are not following that. And that is the message of the God. So in each religious book, in each religious faith, this is the core message. That message is one from God, but messengers are many. The world is doing the upside down. They are not worshiping the God, they are worshiping the messengers. और उन्होंने अपने नाम रख लिए हैं. कोई कहता है जी हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, so forth and so on. So we must understand that. So that is why there is so much conflict in the world. ऐसे ही हमारा शरीर है. आपका जो शरीर है, सबका शरीर एक जैसा है. दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप जाते हो वेकेशंस पे, हम भी जाते हैं. किसी भी देश में, किसी भी आइलैंड में जाओ, ऑल द पीपल हैव द सेम ऑर्गन्स. वही आंखें हैं, वही कान है, वही नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, ब्रेन है, मेमोरी है. एवरीथिंग इज सेम. किसी के 12 हाथ नहीं है, किसी के 2 सिर नहीं है. So it's so much uniformity is there. But we the people is the problem. We don't understand that. Different dress हम पहनते हैं, depending on the geographical location. नो, अगर कोई बंदा जो है वो अलास्का में रहता है, तो वो ये हमारी तरह के कपड़े तो डाल नहीं सकता, क्योंकि एटमोसफियर विल नॉट अलाउ, राइट. तो उसका बाहर के जो कपड़े डालता है वो डिफरेंट हो गए, राइट. लेकिन बंदा तो वही है. अगर अलास्का का बंदा आके न्यूयॉर्क में रहे, राइट, तो हमारी तरह रहेगा, वो वहाँ के कपड़े नहीं डाल सकता. तो ये एक तो जो ड्रेस है, इसने लोगों को डिवाइड कर दिया है. अगर आप पगड़ी बांध लो तो आप सरदार हो गए, सिख हो गए. अगर पगड़ी उतार दो तो आप हिंदू हो गए. किसी ने टोपी डाल ली तो वो मुस्लिम हो गया. किसी ने क्रॉस डाल लिया तो क्रिश्चियन हो गया. ये जो सिंबल मैन मेड हैं, ये हमें समझना है. इनकी ईश्वर के साथ, वाहिगुरु के साथ बात करने का जो डायलॉग है, उसका कोई मतलब नहीं है. डायलॉग ईश्वर से तभी होगा जब आप ईश्वर की तरफ देखोगे. आप उधर देख ही नहीं, हम उधर देख नहीं. दैट इज वाई आवर टुडेज टॉपिक इज कि आंखें तो हैं हमारी, वी हैव टू आईज, एवरीबॉडी हैज टू आईज. लेकिन जो देखना है वो हम देख नहीं रहे, क्योंकि इन आंखों से दिखाई नहीं देता. So that is in spiritual parlance, this situation is called spiritual cataract. स्पिरिचुअलिटी तो है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही, राइट. इन आंखों से जो हम देखते हैं वो हमारी मैन मेड दुनिया है. देखो, हम जिन मकानों में रहते हैं, नीचे तो जमीन है, ये तो हमने मकान उस पर बना लिया, राइट. लेकिन मकान के जिसके ऊपर बना है वो तो जमीन है, राइट. वो एक है.
अब उस जो आपने प्लॉट खरीदा है, चाहे उस पे बेंगलो बना लो, चाहे छोटा सा मकान बना लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अंदर नीचे जो जमीन है वो एक है, वो एक है। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल इनसाइट। ऐसा दुनिया को देखना कि इसके पीछे यूनिटी तो एक है, ये बंदों ने डिवाइड करके रखा हुआ है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। सो मच किलिंग, सो मच हेट, सो मच कंपटीशन, इट इज ओनली बिकॉज वी हैव स्पिरिचुअल कैटरेक्ट। ये देखो, एक भजन है कि मेरे प्रभु तो मुझको बता, मैं तेरे सिवा क्या करूं। सुना हुआ है फूल मैंने। में बस रहा है तो, कलियों में खिल रहा है तो, मेरे तो मन में है तो ही, मंदिर में जाके क्या करूं। कि जिन चीजों में हमें ईश्वर दिखाई देने हैं, ना मैं फूलों में देखता हूँ, ना तितलियों में देखता हूँ, ना कलियों में देखता हूँ, ना अपने मन को देखता हूँ, जिस जहाँ ईश्वर रहते हैं, अल्लाह रहते हैं, या हम वाहिगुरु रहते हैं, उन चीज़ों को तो हम देखते नहीं हैं, राइट। हम और ही कुछ चीज़ें देख रहे हैं, मकान देख रहे हैं, अपनी कारें देख रहे हैं। ये जो, अगर हमने, देखो हम आए थे इंडिविजुअल हैं, वी केम अलोन वील गो अलोन, तो हमने शादी कर ली। अगर ना करते तो देर वॉज नो एक्सटेंशन, राइट। आप कर ली तो आपकी वाइफ आ गई, वाइफ है। एक एक मुझे एक कमेंट मैंने, आई मीन बिफोर आई फॉरगेट दैट वन, आई जस्ट वांट टू से, जैसे आपने पहले अभी कहा था कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सरदार है, कोई जूश भी हो सकता है, कोई क्रिश्चियन है, जो भी है, जिसको सपोजिंग दैट वुड नाई किसको है, बट इन द हॉस्पिटल व्हेन यू गो, किसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए हो, एट दैट टाइम कोई बंदा सोचेगा कि ओ भी मैं तो ये हूँ, मुझे तो उसी बंदे का ब्लड चाहिए? नहीं, मुझे वो कहेगा मुझे जान बचाओ मेरी। यही तो I'm saying प्रॉब्लम this is है। example I'm trying to, मुझे एकदम ख्याल है कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल यही चीज मैं यही सोच रही हूँ कि when you go to the hospital you need help, ब्लड ट्रांस, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, जिसकी किडनीज की प्रॉब्लम है, they have it all the time, they have it every 3 times a week, change of everything. So what I'm saying is that that time what happens, you go to the, अपने मंदिरों में जा रहे हो, गुरुद्वारे में जा रहे हो, वहां जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, चर्च में जा रहे हो, synagogue में जा रहे हो, you pray in your place, but that what happens that time? Do you go and tell the doctor, listen, मेरे को तो उसका ही ब्लड चाहिए? कोई नहीं बोलता ऐसे। और जो वो आ गया, जो जान जिससे बचेगी, थैंक गॉड, बाद में कहेंगे ओ माय गॉड, थैंक गॉड आई एम सेव्ड, बट डिड यू नो who where it came from? No. दैट इज वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। एंड another example, what you are saying is that you go to the hospital and go to the nursery. There are 10 newborn babies. हैं, किसी का कोई रिलीजन नहीं है, जो आके उठा लेता है तो वो हिंदू बन जाता है, हिंदू ने उठाया हिंदू बन गया। उसको तो कोई पूछता नहीं, भाई साहब आपका कोई रिलीजन है? बच्चों को कोई नहीं पूछता, हम उठा के अपनी स्टैंप लगा देते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट इट, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल कैटरेक्ट, कि जो देखना था वो तो हम देख नहीं रहे, और अपनी दुनिया में हम रह रहे हैं। सारी उम्र इसी में रह के चले जाते हैं, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इतनी हम मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे खाली हाथ है, खाली हाथ चले गए, तो समथिंग इज रॉन्ग। नहीं तो ऐसा बिजनेस कौन करेगा कि आपने इतनी मेहनत की, कारपोरेशन बनाई, एम्प्लॉयज रखे, बैलेंस शीटें बनती रहीं, प्रोडक्ट क्रिएट किए, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप वो आपको उठा के ले गए। तो ये कोई घाटे, ये तो बहुत बड़ा घाटे का बिजनेस। तो इसीलिए द टॉपिक इज कि ट्रीट योर इनसाइट, जो आपने कैटरेक्ट क्रिएट किया है, जो देखना था वो आप देख नहीं रहे। देखना तो ये है कि ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, बट यूनिटी है। तो आप अगर इसी प्रिंसिपल को, डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, तो डाइवर्सिटी इज स्ट्रेंथ, नॉट वीकनेस। डाइवर्सिटी इज ए स्ट्रेंथ, नॉट वीकनेस।
लेकिन वो तभी स्ट्रेंथ बनेगी व्हेन आई रिस्पेक्ट not my own thing, others. And when the spiritual cataract is treated, then you will say that the whole world is my extension and projection. ये सारे बंदे मैं ही हूँ. ये different नाम हैं इन्होंने रखे हुए. It is my extension. So everybody is created by one entity, which is called the Almighty God. तो उन्हीं के बनाए हुए सारे बंदे हैं. ये बंदों ने अपने बंदों को बना के कुछ और कर दिया. देखो जो भी प्रॉफिट आए हैं उन्होंने यूनिटी बताई है कि वी आर ऑल वन. लेकिन वो जब चले गए तो जो उनके फॉलोअर थे उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी. किसी ने बुक्स बना ली कि ये बुक की बस है. किसी ने कहा कि नहीं ये है. वो जो प्रॉब्लम है, जो आए थे उन्होंने कुछ नहीं कहा. आप देखो किसी भी फेथ को स्टडी करो, जो फर्स्ट जिसने किया अब 10 कमांडमेंट्स हैं इन क्रिश्चियनिटी. हाउ मेनी पीपल फॉलो 10 कमांडमेंट्स? नो. 10 कमांडमेंट्स में यूनिटी है. आप एक जो 10 कमांडमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 thou should treat your neighbor as your family. वो कहते हैं ना वहाँ उसमें ये one of the things अपने नेबर्स को they like family. कितने लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं नेक्स्ट डोर नेबर है कौन है. और संस्कृत में कहते हैं, ये आप टाइम कहते हैं कि विश्व कुटुंबम, कि ये जो विश्व है, ये जो वर्ल्ड है, इट इज ए फैमिली. Right. It is a family. If that concept is matured through your own deeds and practices on a daily basis, तो then it is a family. अगर आप फैमिली मान ही नहीं रहे तो वो दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है. एंड दैट इज व्हाई वी सिलेक्टेड द टॉपिक जो कैटरेक्ट हमें है, उसका इलाज करना पड़ेगा. तो जैसे हमारी आंखें हैं, फिजिकल आंखें, इनमें कैटरेक्ट आता है तो ऑप्थोमोलॉजिस्ट रिमूव दैट लेयर. आंखें तो ठीक है आपकी, देयर वाज नथिंग रॉन्ग, लेकिन जो लेयर उसके ऊपर आ गई थी जिसको हम कैटरेक्ट कहते हैं, जब उसने थ्रू प्रोसीजर ठीक किया तो आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है. द सेम थिंग व्हेन दिस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी, वी आर ऑल वन, वी आर नॉट डिवाइडेड. जब वो चीज की मैं प्रैक्टिस करूंगा. अब देखो गुरु नानक देव जी ने उनके जितने भी प्रवचन है शुरू किए, राइट, देयर वाज नो हिंदू मुस्लिम. उनको तो चेले जो थे वो एक हिंदू फेथ का था, एक मुस्लिम फेथ का था. नरेंद्र जी, मैं हैरान हूँ कि कल मैं प्रोग्राम देख रही थी on YouTube. They were showing, which is a sad thing in a way, कि अफगानिस्तान में कितने सारे गुरुद्वारे and lot of Sikh population, हिंदू सिख कितने रहते थे वहाँ पे. And they showed इतने ब्यूटीफुल गुरुद्वारा जो बिल्कुल बंद पड़े हैं, कुछ भी नहीं है. फिर एक दिखाया था, गुरु नानक देव जी के 2 बेटे थे, उनका नाम, एक का नाम था श्री चंद. उसका दिखा रहे थे फोटोज, यंग छोटा सा बेटा, हिज नेम वाज श्री चंद, दूसरे का नाम कुछ और नाम था, फॉरगॉट. बट वही मैं कह रही हूँ, देयर इज नो सच थिंग दैट टाइम के ये है तो वो है. एवरीबडी वाज, आई वाज सरप्राइज. कहते उसका भी फोटो मतलब दिखाई हुई है कि किसी जगह में उनकी भी फोटो है. एंड हिज नेम वाज श्री चंद राय और समथिंग लाइक दैट. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम. आई सॉ इतने सारे गुरुद्वारे. अब तो ओनली देयर वाज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स के घर, अब ओनली सिर्फ 15 लोग रहते हैं सरदार. दैट्स इट, ऑल गॉन. वो कंपल्सरी देखो, आपने गुड एग्जांपल दी है. या जस्ट लुक एट योर ओन कंट्री, राइट. इंडिया, जहाँ मदर इंडिया जिसको हम कहते हैं, जहाँ से हम आए हैं, राइट, दोज आर आवर रूट्स. अब उस कंट्री में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी डाइवर्सिटी है. एंड एवरी फेथ इज देयर,
You don't find that type of diversity in any other country. Any other country. वो थोड़े थोड़े लोग हैं, थोड़े थोड़े लोग हैं. This is not overnight. This is the result of the thinking. Thinking. If ये जो word है, it is a family. और Right. family की तरह रहो. Joint family होती थी. It was a great strength. Now there are nuclear families. हस्बैंड वाइफ एंड 2 बच्चे, और वो भी जो है वो ठीक नहीं रह रहे. वो भी. तो पहले 25-30 लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन देर वॉज ए डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग. वो वर्ड था आपका. तो ऐसे ही अगर हम उसको कहते हैं, अब देखो इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, वो इसीलिए हो रहा है कि हम उधर देख नहीं रहे जहाँ पीस है, उधर देख रहे हैं जहाँ वार्स हैं. वार इसलिए इनके डिफरेंसेस हैं. डिफरेंसेस मैन मेड है. कोई किसी ने क्रिएट नहीं किया, आपने कर. अब मैं किसी के नाम बोलूँ तो मेरे मैं हम अपनी कुरियर में कई लोगों को फ्रेंड बनाते हैं, और फिर कई बार वो एनिमी बन जाता है. फिर वो मेरा दिमाग चेंज होता है तो वो फ्रेंड बन जाता है. हम ही बनाते हैं. बंदा वही होता है, वही लोग हैं जिनमें आप घूमते हो. तो आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि कई बार वो लोग अच्छे लगते हैं. वो उन लोग तो वही हैं, लेकिन मेरी थिंकिंग बदल जाती है. थिंकिंग बदल. तो जो हमारा टॉपिक भी यही है कि जो द बेस्ट थिंग टू लिव इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड. ब्यूटीफुल वर्ल्ड को हम ब्यूटीफुल वर्ल्ड की तरफ देखते नहीं है. हमने जो अपनी दुनिया क्रिएट की है उसमें, जिसमें आई की स्टैंप लगी हुई है, द आईनेस. मेरा घर, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी कारें, मेरा बिजनेस, मेरा 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 कॉलेज के साथ आपने आई लगाई हुई है? वो आपका है तो नहीं. आपने वैसे आई आई लगा दी. अब देखो हम मकानों में रह रहे हैं, राइट. इसके जो नीचे जमीन थी, वो हो सकता है 200 साल पहले कब्रिस्तान हो. यू डोंट नो. जमीन तो कहीं जाती नहीं. अब इंडिया में बड़े बड़े किले हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, राइट, खाली पड़े हैं, राइट. क्योंकि वहाँ, लेकिन उसके नीचे जो जिस यहाँ बने हुए हैं वो तो वही है, वो नहीं चेंज हुई. तो द आइडिया इज स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली. Exactly. हम देखो, हम सुबह उठ के हैं, जब सूरज निकलता है, सूरज से 90% इस प्लेनेट पे लोग रह रहे हैं. सूरज की एग्जिस्टेंस से ये प्लेनेट चल रहा है, राइट. तो अगर सूरज निकलता है इन द मॉर्निंग, निकलना कहाँ है, हम ही घूम जाते हैं. सूरज तो सॉरी, हम घूमते हैं. हम कहते हैं रात हो गई, दिन हो गई, देर से ऑलवेज दिन. लेकिन वो क्योंकि हम घूमते हैं, ग्लोब घूमता है, तो हम रात दिन टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं. द पर देखो आइडिया. नरेंद्र जी, किधर ना किधर तो धूप होती है ना. अगर राउंड द वर्ल्ड देखो, अगर यहाँ पे रात है, किस जगह पे धूप है मॉर्निंग. या अगर यहाँ पे धूप है, किस जगह पे रात है. दिस द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेनेट. देखो हाउ इट्स डन. yeah, but there is another way to look at it. कि भाई there is no रात and there is no दिन. राइट. It एग्जैक्टली. is always a दिन. यस. अगर हमारी जमीन ना घूमे तो दिन ही दिन है. तो जमीन घूमते तो हम हैं, सूर्य देवता तो खड़े हैं वहाँ, राइट. राइट. एग्जैक्टली. what the point I am making is, so let us say कि सूर्य देवता निकलते हैं, राइट. तो वो निकले, दैट इज द मैजेस्टिक डिवाइन फोर्स जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है, राइट. तो अगर मैं सुबह उठ के उनके दर्शन करूं कि भाई मैजेस्टी आ रही है, ग्लो है, लेट मी वेलकम. वेलकम. कोई गेस्ट आ रहा है आपका, तो आप वेलकम करते हो. तो लेट मी वेलकम द सन देवता, राइट. तो या. जब आप उठोगे, जब वो सूर्य राइजिंग सन की जो रेज हैं, जब वो आपके चेहरे पे पड़ती हैं, तो आपका एक तो थिंकिंग डिफरेंट है कि आप वेलकम कर रहे हो, राइट. राइट. लेकिन हम करते उल्टा. हम सोए हुए हैं, ब्लाइंड नीचे किए हुए हैं. इतनी बड़ी मैजेस्टिक फोर्स आई,
एनर्जी आई, मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं है, राइट। तो इसलिए दुनिया में इतनी बीमारियां हैं कि हम जहाँ देखना है वो तो देख ही नहीं रहे, राइट। तो अगर इसकी प्रैक्टिस की जाए कि अर्ली, जैसे अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, राइट। तो अर्ली उठ के अगर मैं इतनी मैजेस्टिक एंड रॉयल्टी की भरी हुई एनर्जी को देखूं, तो दैट रिफ्लेक्शन विल बी कंज्यूम्ड बाय माय पर्सनालिटी and the system, the body system, molecules and atoms and protons and neutrons, billions and trillions जिससे हम बने हुए हैं, उनमें चेंज आती है, लेकिन वो हम करते नहीं हैं। इसलिए in the context of India, I am talking in Sanatana Dharma, there was a profound practice. You get up before the sunrise and look at that. I am looking at the majesty. वो हम नहीं करते, राइट। इसलिए दुनिया में इतनी बीमारी है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल कैटरैक्ट, कि जहाँ देखना है वो हमें दिखाई नहीं देता। हम जब 10 बजे उठते हैं अपने कामों में लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं सूरज निकला भी था कि नहीं निकला। एक टर्मिनोलॉजी है कि सूरज निकल गया है। द आइडिया जैसे आप जाते हो बीच पे, राइट, हाउ मेनी पीपल, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल कैटरैक्ट। ये चीज तो सामने हम देख ही रहे। हाउ मेनी पीपल close your eyes at the beach and perceive that the phenomenal thing is happening, and then you open your eyes, look at the horizon where the water and the sky meets, deep in the extension of the sea, right? वो जो मैजेस्टिक सीन आप देखते हो वो आपको बदल देगा, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो इसको कहते हैं स्पिरिचुअल कैटरैक्ट। कि जो मैंने चीज देखनी थी, मैं तो वहाँ थोड़ा इधर उधर घूम के बीच से आ जाता हूँ और कहता हूँ कि मैंने बीच में सैर की है। तो ये दिस इज अवर पॉइंट। अब देखो, धरती माता है, राइट। आप एक सीड लाते हो, यू पुट इट इन दिस सॉइल, उसके बाद उसका क्या होता है, यू हैव नो इनपुट। धरती माता, द मदर नेचर, मदर अर्थ, वो अपनी गोदी में उस बीज को लेकर, जैसे बच्चे पालते हैं उसको पालती है। छोटा पौधा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसके पत्ते आते हैं, फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर फल बनता है, राइट। ये इतनी ट्रांजिशन जो हो रही है, एम आई सेंसिटिव, मैंने कभी देखा कि भाई मैंने तो एक बीज डाला था, ये पौधा कहाँ से आ गया, राइट। उसको कहते हैं स्पिरिचुअल कैटरैक्ट। मैंने जो देखना वो तो मैं देखा नहीं, राइट। Super. तो अब ऐसे ही हम कभी नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ इसलिए जाते हैं कि मैंने प्लांट्स खरीदने हैं। मैं इसलिए नहीं जाता टू सी द क्रिएटिव कलर ऑफ द नेचर। इतने कलर तो आदमी भी नहीं बना सकता। जितने फूल वहाँ हैं, रोजेस हैं, लिलीज हैं, डिफरेंट टाइप से, उनकी फॉर्मेशन देखो, उनकी डेलिकेसी देखो, हैं, वो कौन बना सकता है। जब मैं ऐसी चीजों में सेंसिटिव नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल कैटरैक्ट। मैं देख नहीं रहा जो देखना है, मैं तो वहां से लेके प्लांट घर ले आता। तो जो मैंने देखना था वो तो मैंने देखा। तो अगर मैंने अपनी थिंकिंग ठीक करनी है, तो मुझे, आई शुड विजिट द नर्सरी for half an hour, 1 hour, whatever time is. And I should look into the rose, into the lily, in other flowers, colors and formation. कितनी डेलिकेसी है, कितनी वैरायटी है, और उसमें हमने तो कुछ भी नहीं किया, राइट। तो उसको कहते हैं कि जो ऐसी चीजें देखता है उसका स्पिरिचुअल कैटरेक्ट, उसने इलाज कर लिया है। जो नहीं देखता वो ब्लाइंड है, वो ब्लाइंड है, वो दुख में रहता है। फिर वो सारी, देखो, जिसका जिसको स्पिरिचुअल कैटरेक्ट है, वो जब अगर नर्सरी में जाके नहीं देखता तो वो बंदों में भी नहीं देखता। जब जिस You जिस know, दुनिया में हम रहते हैं, हम उनके
डेफिशिएंसी देखते हैं? हम जिनमें जो कमियां हैं उसी की तरफ ध्यान जाता है, राइट? अगर कमियां तो सभी में है, अपनी नहीं दिखाई देती, राइट? तो इसलिए जो पर्सनालिटी की डेवलपमेंट है, अगर आपका स्पिरिचुअल कैटरेक्ट ठीक है, then in your memory you will save the goodness of others and you will delete the shortcomings of others. और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, बिकॉज यू आर एवरीबॉडी इज ए प्रोडक्ट ऑफ हैबिट्स। और हैबिट्स जो है, व्हेन रिपेटिटिवली वी डू मैनी मैनी थिंग्स, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो फिर इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी बनती है, वो आपकी पर्सनल आपकी मेमोरी में रजिस्टर हो जाता है। तो इन चीज़ों की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपका स्पिरिचुअल कैटरेक्ट आप ठीक कर रहे हैं, अदरवाइज उसका इलाज नहीं होगा, वो ब्लाइंडनेस रहेगी, हम वो ही करते रहेंगे। और उस जिसमें स्पिरिचुअल कैटरेक्ट है, ये देखो एक और स्टेटमेंट है, वो सफरिंग में है। बिल्कुल। आवर बॉडी इज मेड ऑफ 3 लेयर्स, एक है फिजिकल बॉडी, एक है इमोशनल बॉडी, और एक है स्पिरिचुअल बॉडी, राइट? ये जो इमोशनल बॉडी है आपकी, वो इमोशन से बनी हुई है, आपकी परसेप्शन से बनी हुई है। उसमें आपका माइंड है, इंटेलेक्ट है, मेमोरी है, और आपकी ईगो है। तो इससे जो बना हुआ प्रोडक्ट है, उसमें मेमोरी है कॉलम। माइंड प्रोड्यूसेस थॉट्स, थॉट्स आर स्क्रीन थ्रू योर इंटेलेक्ट एंड देन गोज टू मेमोरी, और उसमें आपकी ईगो भी अटैच है। आप वही चीजें रोकते हो जो आपको पता भी है इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन वो आप रोक ही नहीं सकते, कोई भी नहीं रोक सकता अगर उसकी मेमोरी जो है, वो उसने प्रैक्टिस नहीं की कि मैंने अपनी मेमोरी खराब नहीं करनी, क्योंकि ये बाजार में नहीं मिलती। कंप्यूटर की, सेल फोन की मेमोरी आप ले लेते हो, आपको मैसेज भी आता है कि आपकी मेमोरी चौक हो गई है, जो बाई एडिशनल। ये जो मैं इनके ईश्वर ने जो हमारे अंदर मेमोरी का कॉलम रखा है, वो बाजार में बिकती नहीं है, वो जो है वो है। तो उसको ठीक रखना वो हमारी ड्यूटी है, और वो ठीक इसलिए नहीं होती कि आई हैव स्पिरिचुअल कैटरेक्ट, दैट इज द प्रॉब्लम। तो उसका इलाज है कि मुझे इस कैटरेक्ट, जैसे मेरी फिजिकल आंखों में अगर कैटरेक्ट होता है तो आई गो टू द ऑप्थोमोलॉजिस्ट, राइट? और विद procedure he cures that, and you are all right, you will start looking at the things. But spiritual cataract के लिए you are the doctor, बाहर का डॉक्टर नहीं कोई भी, you are the doctor. The only thing is to practice. प्रैक्टिस को संस्कृत में कहते हैं जो अभ्यास, अभ्यास इन प्रैक्टिस। किसी अच्छी चीज के देखो, एंड दिस इज द फार्मूला नाउ, किसी अच्छी थॉट को रोक के, एंड बीना जी दिस इज वेरी सेंसिटिव स्टेटमेंट, किसी अच्छी थॉट को रोक के रिपेटिटिवली 9 months, if you practice, that will become the integral part of your personality. पक्की बात है। उसका अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं फिक्स टाइम पे, कि मैंने जैसे हम प्रार्थना, राइट, कि मैंने 8 o'clock अपनी मेमोरी के लिए ये चीज करनी है, एंड आई शुड कंटिन्यू एट द सेम टाइम every day for 9 months. So then that practice will become the integral part of your personality, and your memory will start registering the goodness of others and deleting the garbage. Otherwise हम कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, लेकिन हमने इतना गार्बेज रोका हुआ है इन दी मेमोरी, the good things don't enter because it is saturated. So you have to squeeze
the memory column, make a space so that the good thought should stay with that. और उसका जो सीड मंत्रा है वो यही है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ द गुडनेस। उसको छोड़ना नहीं। फिर ये नहीं कि रैंडम आज कर दिया नहीं। 9 months ये ब्रॉड बेस्ड रिसर्च है। किसी भी चीज की आप गुड और बैड जिसकी भी आप प्रैक्टिस करोगे 9 months repetitively, same time, continuously, that will become the integral part anybody's personality जो भी करता है। So it is spiritual। जो हमारा टॉपिक है, what is spiritual cataract? Spiritual cataract है कि हम ईश्वर की बनाई हुई दुनिया, वाहे गुरु की जी की बनाई हुई दुनिया, उधर हम देखते नहीं। हम देखते नहीं हैं, हम अपनी बनाई हुई दुनिया में घूम रहे हैं। उसी के मुताबिक हमारा सारा स्केड्यूल है। सुबह उठते हैं, खाया पिया, फिर इंटरेक्शन हो जाता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हम देखो रात को हम कहते हैं अर्ली बेड, अर्ली 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 टू बेड एंड अर्ली टू राइज, राइट। वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं रात को, अगर मैंने अपनी पर्सनैलिटी बदलनी है स्पिरिचुअली, तो अगर मैं रात को उठ के लेट अस से 12 o'clock for half an hour or 15 minutes, go in the backyard and look at the sky. Look at the sky. कि भाई ये क्या हो रहा है। मैं तो अंदर अपने बेड पे लेटा हुआ था, ये जो तमाशा ऊपर, बिलियंस स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, नेबुलास हैं, ये तो मैं देखता ही नहीं है। तो जितने दिन मैं वो विजन नहीं देखता, मेरी थिंकिंग नहीं चेंज हो। एक बंदे को मैंने पूछा, वो इंडिया से आया, तो वो मैंने यहाँ एलएमएस क्वींस में मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता था, राइट। तो उसका फर्स्ट फ्लोर में अपार्टमेंट था। तो वो इंडिया से आया, तो उसने रहना शुरू कर दिया। तो एक दिन वो मुझे कहता, कपूर साहब, यहाँ सूरज ही नहीं निकलता। क्योंकि वो जहाँ वो रहता था वो अंधेरा रहता था। सुबह भी अंधेरा है, शाम को फिर अंधेरा है। और दफ्तर जाता था तो वहाँ जो जहाँ काम करता था वो बेसमेंट में था। वो कहता, सूरज कपूर साहब, मैंने जब से मैं आया हूँ मैंने सूरज तो देखा ही नहीं है। तो सूरज इसलिए नहीं देखा कि हम अगर वो टाइम लगाता, उसको उसको पता तो है तो सूरज है। ऐसे ही ये जो सृष्टि है, ब्यूटीफुल क्रिएशन, उसको हम देखते नहीं है। उसी को कहते हैं स्पिरिचुअल कैटरेक्ट। अगर मैं देखना शुरू करूँ, राइट। अब देखो, अगर मैंने अपनी स्पिरिचुअल कैटरेक्ट ठीक रिमूव करनी है, आई शुड गो टू जू। तो लुक एट द वैरायटी ऑफ द एग्जिस्टेंस। हाथी कैसा होता है, जिराफ कैसे होता है, स्नेक्स कैसे होते हैं। वो काटने फाड़ने के लिए नहीं रखे हुए ईश्वर ने। उनके उनके साथ प्रेम करो तो दे रिस्पॉन्ड। Oh, yes. मैं आप मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि वी वेंट ऑन वेकेशन एट वन आइलैंड। तो वहाँ एक आदमी मांग रहा था, उसने एक बहुत बड़ा सांप अपने गले में डाला हुआ, राइट। जो घूमते हैं ना, आपने देखा होगा, इंडिया में भी थे। तो वहाँ वहाँ वो घूम रहा था। तो मैंने उसको देखा, तो मेरे दिल में आया कि वाई द हेल वी आर स्केर्ड। ये तो अपने गले में डाल के मांग रहा है, थोड़ा बहुत जो भी है लोग देते भी हैं। तो अगर इसको डर नहीं लगता, ये तो अनपढ़ है, कहीं गया भी नहीं। तो हम इतने क्वालिफाइड अपने आप को समझते हैं, राइट। तो वाई नॉट पुट दिस स्नेक ऑन योर शोल्डर, है। तो मैंने उसको कहा, सच्ची बात, मैंने उसको कहा, भाई आई विल गिव यू द मनी जो आप मांग रहे हो, ये पुट दिस स्नेक ऑन माई शोल्डर। तो वो बहुत बड़ा था, तो उसने उतार के मेरे शोल्डर्स के ऊपर ऐसे कर दिया। एंड रियली इट वाज वेरी हार्ड। उसने कहा जी यहाँ से पकड़ लो, वो जहाँ उसका फेस था सांप का। एंड वंस आई पुट इट ऑन माई शोल्डर,
आई वाज सो फियरलेस कि ये तो वैसे ही है, इतना कोमल है, इतना सॉफ्ट है, काटता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता। हम सारी उम्र डरते ही रहे। Oh. तो अब देखो, मैंने एग्जांपल दिया पर्सनल कि हमने अपनी लिमिट्स आप क्रिएट की है, Hmm. राइट? तो अगर देखो, ईश्वर ने जो भी सृष्टि बनाई है Yeah. वो डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बनाई, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। अब देखो, वो ही शेर होता है, हैं, जिसे लोग देख के भाग जाते हैं, और जब वो सर्कस में आता है उसको जो को वो सब कुछ करता है, राइट? क्योंकि उसको प्यार भी मिलता है, उसको ट्रेनिंग मिलती है, और जो ट्रेन कर रहा है उसके दिल में फियर नहीं है। तो जब फियर जो है, दैट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम जब किसी किसी को बिल्ली से वो एलर्जी है, वो इतना डरता है, कोई रैट आ जाए उससे वो सारा कमरा खाली हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस नहीं है अच्छी बात की, कि ईश्वर की सृष्टि में वो काटने फाटने के लिए नहीं जानवर रखे हुए। प्यार करो। इंद्र जी, मैं आजकल कई बारी मैं वीडियोस देखती हूँ, नॉट व्हाट पीपल बट अबाउट एनिमल्स। एक आता है चैनल, उसमें काफ़ी लोग दिखाते हैं रियल स्टोरीज, रियल है कि लोग कैसे, जैसे छोटा बेबी किसका पपी हुआ है, एग्जाम्पल, माँ के 5-6 पपी हो गए, चलो उठा के फेंक दिए सड़कों के ऊपर, कभी इधर, लाइक दे डोंट, माँ को रखा हुआ, बट माँ, शी इज सो मच लव्स हर पपीज, शील गिव अ लाइफ फॉर देम। भागती है इधर उधर, कभी मेरी जब मेरा पपी का है, उसको फिर ऐसे उठा, जब अगर देखा उसको ऐसे मुंह से उठाएगी, लेके जाएगी, उसको कितना लिक करती है, कितना प्यार करती है। सो दे एनिमल्स आर, दे आर फुल ऑफ लव, फुल ऑफ लव। मैं तो देखकर किटन्स को भी बच्चा देती है। एक आई थी किटन, मदर शी वाज सो अपसेट, किसने देख लिया उसको, कार रोकी, एक छोटा बेबी लेकर आई, भाग के गई, कहते फिर कहाँ चलेगी, भाग के गई, दूसरा बेबी लेकर आई। 5 टाइम्स शी वेंट एंड शी बॉट अ स्मॉल बेबी, कि मेरे बच्चे को देखो ना, लाइक दे ट्राइंग टू टेल यू कि दिस माय बेबीज, आई लव माय बेबीज। तो वी थिंक हो ये डर, लाइन्स सेम, शेर, शेर का भी सेम स्टोरी है। when they have them, उनको कितना प्यार करते हैं, they take care of them, but we have that fear कि they are very cruel, they are very this thing, attack कर देंगे हमको, ये कर लेंगे, but they have that compassion with them like we do। अपने बच्चों के साथ उनको भी सेम चीज़ है। लाइन हो या एलिफेंट हो, हॉर्स हो, एवरी ऑल ऑफ देम हैव दैट सेम लव फॉर द बेबीज। हम कभी देखते नहीं वो चीज़। अब देखो, हम कहते हैं लव, हमने इंग्लिश में हम कहते हैं लव बिगेट्स लव, हेट बिगेट्स हेट, राइट? लव बिगेट्स लव, इट इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली। ये नहीं कि हमारे बेबीज के ऊपर ही है, जितने भी बेबीज हैं, चाहे वो शेर का है, चाहे वो सांप का है, चाहे वो हाथी का है, दे नीड लव। अब देखो, हाथियों का जब वो काफला जाता है, झुंड जाता है, वो छोटे छोटे बेबी हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं पूरी, इधर उधर ना हो जाए, राइट? तो ये उस दुनिया में, ये दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, हमने अपनी लिमिट्स आप क्रिएट करते हैं। कोई सांप से डरता है, कोई शेर से डरता है, कोई बंदों से डरता है, कोई वो जो, अगर कोई बंदों से डरता है ना, तो अगर वो इंडिविजुअल किसी भी असेंबली में या किसी भी गैदरिंग में आता है तो उठ के चला जाता है, जो जो डरता है, राइट? तो डर जो है, दैट इज स्पिरिचुअल कैटरेक्ट। हम देख नहीं रहे, जो देखना था वो तो देख नहीं रहे, हमने अपने क्रिएट कर लिया है। किसी से हम डर रहे हैं, किसी को हम प्यार कर रहे हैं। तो इट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी डेवलपमेंट कैसे हो, यूनिवर्सल डेवलपमेंट। वी आर यूनिवर्सल पीपल, नॉट किसी देश के, किसी धर्म के। वी केम अलोन, हमारा कोई धर्म नहीं था, ये तो लोगों ने बना दिया। धर्म यही है स्टैंप कि लगा था ना, स्टैंप, दिस इज दिस वन, ये कि हिंदू हो गया, ये मुस्लिम हो गया, ये सरदार हो गया, ये क्रिश्चियन हो गया, स्टैंप्स लग गए सबको। तो that is exactly our point, is this is the spiritual cataract। ये मैन मेड है, ईश्वर की, अल्लाह की, वाहिगुरु की जो बनाई हुई दुनिया है, उसमें हम रहते नहीं हैं। उसमें ना हेट है,
लव ही लव है। अब देखो, आप जीसस क्राइस्ट का सारा लाइफ स्टाइल देखो, इट इज ऑल लव। लव दाई नेबर, लव दाई नेबर। हम नेबर से तो hate- हम तो नेबर से हेट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्रिश्चियन आए हम हैं? मुझे बताओ। हमने तो, अब दो दो क्रिश्चियन हैं एक मोहल्ले में, हैं, साथ साथ हैं। उन्होंने तो बीच में फेंस लगा दी हुई है। तो अगर फेंस से लग रही हैं तो उसमें प्यार कैसे आएगा? वो तो कंपटीशन है कि ये मेरी है, ये आपकी है। पहले ज़माने में देखो, अभी मैं 40-50 साल पहले भी मे भी करते, देयर वाज नो सच थिंग। लोग नेबर आता था ना, कोई नया थोड़ी सी, कोई केक लेके गया है, कोई होममेड डिश लेके जा रहा है, वेलकमिंग इन द नेबरहुड, ऐसे भी होता था पहले। या पहले ऐसे होता था यहाँ पे, ऑल द प्लेसेस, इधर एनीवेयर यू गो दे यूज्ड टू ब्रिंग वेलकम केक, वेलकम डिश, वेलकम बात करने के लिए, इफ यू नीड एनी हेल्प दिस दैट करते थे लोग। अब पता नहीं क्या सब दुनिया में चेंजेस आ गई हैं बहुत। नहीं, लॉट ऑफ एक बात और, अभी भी when आप किसी आइलैंड पे जाते हो ऑन ए वेकेशन, जिस तरह का ट्रीटमेंट आपको वहाँ मिलता है, होटल में या बाजार में या शॉपिंग में, वो आपके लिए दरवाज़ा खोलते हैं, आप थैंक यू कहते हो, वो भी थैंक यू करता है। एलिवेटर में आप उनके लिए रुक जाते हो। एवरीथिंग सो कॉर्डियल, सो फ्रेंडली, सो लविंग। द मोमेंट वी कम बैक ऑन कैनेडी एयरपोर्ट, everything comes back with मैं vengeance. मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ। अभी देखो दुनिया में क्या होता है क्या नहीं, वही मैं कह रही हूँ, नेबर्स हैं हम, जैसे नेबर, नेबर मीन्स डजंट मीन नेक्स्ट डोर नेबर, इट मीन्स वर्ल्ड नेबरहुड की बात, लाइक इट्स वर्ल्डली उसका। हम ये नहीं कि नेक्स्ट डोर नेबर कौन है कौन, ये बात नहीं। नेक्स्ट डोर मुल्क का भी नेबर तो होते हैं ना, मुल्क के भी तो होते हैं। तो मैं अभी गई थी पाकिस्तान, नॉट इवन 6 months ago। जो मुझे वहाँ वेलकम मिला है, मैं कहती हूँ मुझे कभी इस दुनिया में नहीं मिला। फ्लावर्स क्या, गार्लैंड्स, फ्लावर्स, सेवा, एक एक बंदा इतने प्यार से मिला है, इतने प्यार से मिला है। वरेवर वी वेंट, हमारी किसी गुरुद्वारे में चले गए, इधर बाहर चले गए, कुछ खाने के लिए चले गए, होटल में ठहरे, everybody was so respectful and so out of the way they helped. So that's what I'm saying, जैसे आप कह रहे हो वेलकम कितनी हुई है। Place I was not expecting so much, I wasn't thinking maybe, but then they all, each and every category के लोग, ऊपर के या नीचे के, all welcomed बहुत अच्छी तरह। That is our point. If these things are doable, Right, we can do it, but we are not doing it because we have a spiritual cataract. जहाँ देखना है वहाँ हम देख नहीं रहे, जहाँ नहीं देखना वहीं सारा अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं हम। तो जो टॉपिक है उसको लेट अस रीइंस्टेट अगेन, कि अगर ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में रहोगे, राइट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ट्राई टू टॉक टू द स्टार्स, ट्राई एंड सी द ब्यूटी, आपका माइंड चेंज हो जाएगा। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वेलकम द मैजेस्टी and the powerful energy which is touching this planet with your own naked eyes. Look at it. And that will give you so much divine energy in your personality कि आपके विचार बदल जाएंगे, आपके विचार बदल जाएंगे। The mind will be broadened. When we go to the ocean, right? बीच पे जाते हैं, right? Try to see कि इतना पानी है, इसके अंदर क्या हो रहा है। बिलियंस टाइप ऑफ क्रिएचर लिविंग, और नीचे कोई सुपरमार्केट नहीं है, कोई जो है बाहर खाना लेने नहीं आता, सब कुछ नीचे हो रहा है। तो ऐसा जब विचार आता है तो आपका सिर झुक जाता है कि वाह, हे प्रभु, हे वाहिगुरु, आई एम ब्लेस्ड, कीप माई थॉट्स दैट वे। उसमें फिर कंपैशन आएगा, एम्पैथी आएगी। आपके आपके जो ईगो है वो सेल्फलेसनेस स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट होगी कि मैं तो कुछ भी नहीं, ये तो सारी दुनिया इतनी बड़ी है, मेरे से बहुत अच्छी है। तो ये दैट इज कॉल्ड टू रिमूव द स्पिरिचुअल कैटरैक्ट, टू लुक एट दीज थिंग्स, गो टू द नर्सरी,
एंड वॉच नॉट फॉर बाइंग प्लांट, वो भी बाई कर लो, लेकिन स्पेंड हाफ एन आवर 40 मिनट टू लुक एट द वैरायटी एंड लुक इनटू द रोज कि भाई ये इतनी ब्यूटी कहाँ से आ गई, इतनी डेलिकेसी कहाँ से क्रिएट हो सकती है। आप एक पेटल को देखो कैसी अरेंजमेंट है रोज का, वो 20-25 पेटल्स जो हैं वो ऐसे अरेंज हैं जैसे कोई बहुत बड़ा जो आर्टिस्ट था उसने बनाई है, लेकिन वो हजारों में है, राइट। तो तब जब हम ये ऐसी चीजें देखते हैं, हमारा स्पिरिचुअल कैटरेक्ट दूर होके स्पिरिचुअलिटी डेवलप होती है एंड आपके माइंड बदल जाता है। एंड वी हैव बीन सेइंग दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइंड, स्टेट माइंड की। एक है सात्विक स्टेट, एक है राजसिक स्टेट, एक है तामसिक स्टेट। ये जो चीजें हैं, ये तामसिक स्टेट और राजसिक स्टेट में देयर इज ए स्पिरिचुअल कैटरेक्ट। जब सात्विक स्टेट आपकी माइंड की हो जाती है, सोच बदल जाती है, तो उसको कहते हैं कि इसका स्पिरिचुअल कैटरेक्ट दूर हो गया है। नो ही और शी इज इन्वेस्टिंग टाइम एंड रिसोर्सेज इन दोज प्रोजेक्ट्स। आई नो। पर अब नरेंद्र जी आपने जो एक्सप्लेन किया है, वी हैव टू प्रैक्टिस। जो आपने एग्जांपल दिया है, रात सुबह उठ के देखो और रात को स्टार्स को देखो, सुबह जल्दी उठ के। So these are the things, and those are not difficult to do, very easy. And every day practice something to delete. So after 9 months, you'll only get good thoughts. जो automatically जो खराब वाले वो तो आएंगे ही नहीं, वो अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे. So that has to be done the same time every single day for 9 months, or even more if you want. कोई ऐसी बात नहीं कि ज़्यादा नहीं कर सकते, पर 9 months में you get the habit का आपकी हैबिट ही बन जाएगी वो. So we have to practice all this. एक चीज और है, देन टाइम हो गया, बट आई जस्ट वांट टू स्ट्रेस वन थिंग। जैसे किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, उसका A1C हायर है, तो डॉक्टर उसको क्या कहता है कि भाई शुगर ना खाओ, राइट, एब्सटेन द कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स, एनी टाइप ऑफ स्वीट्स। और फिर वो मेडिसिन भी देता है इफ इट इज इन एडवांस स्टेज, राइट। तो वो जिसको है वो सब कुछ करना शुरू कर देता है, जिसको नहीं है वो वैसे ही चल रहा है। उसको पता है कि इसको प्रॉब्लम इसीलिए हुई है कि ये मेरी तरह ही रह रहा था, अब ये पकड़ा गया है, राइट। ये दवाई भी खा रहा है, शुगर भी इसने छोड़ दी, स्वीट्स भी छोड़ दी हैं, तो मुझे भी छोड़ देनी चाहिए। नहीं, वो जितनी देर डॉक्टर नहीं कहेगा वो वेट करता है। तो जब उसका ब्लड एनालिसिस आएगा, उसमें कहेंगे जी A1C बहुत ऊपर चला गया, देन ही विल लिसन। Yes. व्हाट वी आर टॉकिंग कि A1C, स्पिरिचुअल A1C ऊपर ना जाए, जिसको कैटरेक्ट कहते हैं, स्पिरिचुअल कैटरेक्ट, उसके लिए प्रिएम्प्टिव डीड्स शुड बी डन। और Right. प्रिएम्प्टिव डीड्स यही हैं कि चेंज द स्टेट ऑफ योर माइंड, ब्रिंग कंपैशन, कंपैशन जिसकी आप मदद कर सकते हो सेल्फलेसली करो, एंड ब्रिंग द पिटी, सिंपैथी जिसको कहते हैं। और देन व्हेन यू सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर, एज आई टोल्ड यू मैनी इंसिडेंट, उसमें आपकी ईगो जो है वो सेल्फलेसनेस स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट हो जाएगी कि मैं तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो ईश्वर ने इतनी वैरायटी रखी हुई है, इतना कुछ हो रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, राइट। उसमें वो ह्यूमिलिटी क्रिएट होती है, आप हम्बल बन जाते हो। आप हम्बल अदरवाइज नहीं बनोगे, हम यही कहेंगे कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। सो द कंडीशन प्रेसिडेंट इज to remove the spiritual cataract. I'm just concluding. Bring the compassion, practice the compassion and empathy. Empathy. दूसरे का दुख अपना दुख मान के उसकी हेल्प करो, and bring the selflessness state of mind. वो जो नम्रता है, Right. जो उसको पैदा करो कि भाई ये मैं कुछ भी नहीं, मैं तो जो भी कर रहा हूँ ये मेरा नहीं है, मैं ईश्वर के काम कर रहा हूँ। और उसमें जब आपकी ईगो नहीं होती तो आपके काम अच्छे हो जाते हैं। आप देखो, कोई दान देता है मंदिर में, राइट, 100,000 दान दिया,
तो वो अंदर से ये सोचता है कि वो मैंने 100,000 दिया है, अब मेरी पिक्चर आए, लोग कहेंगे जी बड़े बड़े से दानी है। लेकिन अगर उसकी भावना चेंज हो जाए, वो कहे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हे प्रभु वाहिगुरु ये तेरा ही था, मैंने आपको ही दे दिया है, तो मैं तो बीच में कहीं आया ही नहीं, मेरे पे कृपा करो। वो सोच नहीं है, वो सोच नहीं है। हम नेम एंड फेम के लिए चले जाते हैं, उसमें ईगो और स्ट्रांग हो जाती है। काम तो अच्छा किया, रिजल्ट बुरा। So that is called to remove the spiritual cataract. It is our moral, ethical, and and religious duty to do that. So I think the time भी हो गया आपका। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आज का टॉपिक, ज़बरदस्त एंड नॉट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, बट पॉइंट्स जो है प्रैक्टिस करने चाहिए, देन ओनली यू गेट यूज टू इट एंड यू गेट परफेक्ट। नहीं तो ऐसे तो हम ये कभी कल कर देंगे, ये ऐसे नहीं होता। वी हैव टू बी कंसिस्टेंट with these practices, then only we can change our mind, way of thinking and habits थोड़ी change करनी पड़ेंगी। सबको करेंगे then then there'll be a change in everybody. If everybody does that, the world will be a different place. चलो हम तो अपने से ही कह सकते हैं ना। That is why I always say please forward these programs, because नरेंद्र जी की टीचिंग बहुत ही कमाल की है and everybody should learn. जिसको भी even 1 or 2 people will learn something today, that's a big thing. That's how you start. Forward, keep on forwarding, keep on forwarding. तो निरंतर जी मैं भी आपको करूँगी, and I'm going to send you the clips of today, and then I will send it to you and send some pictures. And everybody else who's watching, please do the same. And thank you so much for watching, and have a wonderful long weekend, a Memorial Day weekend, and enjoy करो family के साथ, friends, whatever. Have a wonderful time. And निरंतर जी आपको भी thank you so much. Have a wonderful weekend. Give my regards to everybody. एंड आप भी सेफ रहिए, ज़्यादा तेज मत चलाइए, स्लोली ड्राइव स्लोली एंड I always wish you good health and quality of life. Continue this good program. This is called the treatment of spiritual cataract. This is the treatment. People should watch this program again and again, because you bring so many talented individual of different expertise. People should watch this program. I request everybody to watch this program. And thank you very much. Thank you. Jai Shri Krishna. आपको बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सी यू सून नेक्स्ट वीक, बाय बाय। ओके निरंतर जी, बाय। Okay, bye. Thank you, Veena ji. Thank you. And give my regards to Lamba साहब, बच्चों को प्यार देना। आई विल And I will start sending you $50 for Urva.